to the second video on periodic table for our ICSE grade 10 students. So without losing any time, let us move ahead. आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया पिछले वीडियो में. Today we will deal with the minute aspects of the periodic table. Basic points क्या याद रखने हैं. So very quickly everybody sit with your notebooks and pencil, note down everything. Note down everything, नहीं तो वीडियो देखने का फायदा नहीं है. Right? तो जब आप लिखेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से you will be able to use the knowledge that you are going to gain in the next 30 minutes. Right, students? So let's begin. Previous video, we had started off with the introduction of this modern periodic table. मैंने तुम लोगों को contents बता दिया है कि हमें basically किस चीज पे focus करना है. So we are basically going to focus on periodic properties and few other components. So today directly hitting the nail on the head. चलो शुरू करते हैं with the development of the long form of periodic table, which is very much there in our syllabus. यहाँ से जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपको 10th में याद रखना है. Okay, so Henry Moseley. Henry Moseley was the person जिन्होंने एक experiment शुरू किया था about the year 1910. उन्होंने क्या किया? For every element, he irradiated these elements and then कुछ energy radiations निकल के आए. फिर उन्होंने एक relationship derive करने की कोशिश की थी between the radiations which are coming out from the electrons and the atomic weights of those elements. But what happened? Henry Moseley found out that उनको ऐसा कोई भी relationship बनाना मुश्किल पड़ रहा था. He was able to make this relationship with atomic number. Henry Moseley ने अपने experiment से पाया कि atomic weight और जो frequencies element से निकल रही थी उनके बीच में there was no direct correlation. The correlation happened with atomic number. मोस्ले को बेनिफिट क्या था? उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई थी. सो ही न्यू अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम. ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि बिकॉज ही गॉट द रिलेशनशिप. ये ग्राफ देखो, ग्राफ तुम्हें याद नहीं करना बच्चे, जस्ट एक बैकग्राउंड नॉलेज है कि अच्छा हेनरी मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस बेसिस पे कि व्हाट कंक्लूजन डिड ही कम अप विद. उन्होंने ये बोला कि we should consider atomic numbers as fundamental characteristics of elements. तो नीचे का पॉइंट देखो, ये आपकी सेलिना में भी मेंशन्ड है that Henry Moseley knew what were fundamental particles. तब तक डिस्कवरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूसिवली in 1897. And similarly protons were also known कि हाँ पॉजिटिव particles भी होते हैं, negative particles भी होते हैं inside the atom. These fundamental particles became the point of focus of Henry Moseley. और उन्होंने ये predict कर दिया, ये finally बता दिया कि atomic number, which is actually what? Atomic number क्या होता है बेटा? Atomic number which is represented by the symbol Z. Atomic number किसी भी element का होता है number of protons present in that atom. Protons present in the atom. This is also called, or this is also equal to the number of electrons. Definition हमेशा number of protons के point of view से आपको देना है. Number of electrons present in the atom. Okay, so atom is neutral because the number of protons and electrons, they are always the same, provided वो neutral है. अगर वो ion में convert हो गया तब number of protons and number of electrons are not going to be same. इसीलिए जब हम एक standard definition लेते हैं तो definition is always given from the point of view of that thing which remains constant. इसीलिए एटॉमिक नंबर का जब भी आप डेफिनेशन देंगे आप हमेशा लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम which is also equal to the number of electrons present in a neutral atom. Got it? So from this point let us move on to the next slide. इस slide से क्या outcome तुम्हें लेके जाना है? That atomic number is a fundamental characteristics of element. मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किड्स? ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये डेफिनेटली आप नोट करेंगे. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, नोट कर सकते हो आराम से.
ओके, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है इसको याद करना, ये ग्राफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द डेवलपमेंट वर्क डन बाय हेनरी मोस्ले एंड नील बोर। आई होप आपको अब ये साइंटिस्ट के नाम याद हो गए होंगे, बिकॉज मैंने इतनी बार रिपीट किया है। नील बोर एंड हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने फंडामेंटल दिया और बेसिक डेवलपमेंट नील बोर ने किया। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को इस पे आता है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली क्या लिखना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि हेनरी मोस्ले ने बोला कि एटॉमिक नंबर ही है जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब किसी भी एलिमेंट का फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर वो डिसाइड करने वाला है। ओके, तो स्टेटमेंट भी देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द elements are a periodic function of atomic numbers. You need to learn this up kids. ठीक है, याद कर लेना इसको। सिंपल सा एक लाइन है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। याद रहेगा, लिख लो इसको फटाफट। बहुत एक्स्ट्रा चीज नहीं आपको दे रहे हैं, वही दे रहे हैं जो आपको याद करने का है। गॉट इट? सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Modern periodic law applies to the long form of periodic table. Long form of periodic table इसी पे आधारित है। ठीक है, now from this we come to the next part कि modern periodic law लिख लिया हमने। अब हमें लिखना होगा what is periodicity. Now previous lecture में मैंने तुमको periodicity समझाई थी। periodicity क्या होती है कि एक जैसे एलिमेंट का एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बाद रिपीट होना। जैसे 2, 8, 8 के गैप के बाद, एटॉमिक नंबर्स के गैप के बाद मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलता है विच इज सिमिलर इन बिहेवियर। ये पीरियोडिसिटी थी जो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो व्हाट यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स separated by certain definite gap of atomic numbers. अगेन इस चीज को अच्छे से लिख के इसको बेटा रट लेना है। पीरियोडिसिटी क्या है? रेपिटेशन ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर्स। पिछले क्लास में भी नोट किया होगा। देन मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा था। वो डेफिनेट गैप ऑफ एटॉमिक नंबर्स और क्या है, उन्हीं को हम मैजिक नंबर्स बोलते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देख लिया था। पीरियोडिसिटी के साथ ही मैजिकल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। Got it? So first thing, learn the modern periodic law, learn what is periodicity, मैजिक नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, पीरियोडिसिटी तो हम समझ गए, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, क्यों होती है पीरियोडिसिटी, क्यों मिलता है हमें एक एलिमेंट हर 2, 8, 8, 18 के गैप पे। Next question is, what is the reason of periodicity in the long form of the periodic table? Got it? What is the reason of periodicity? तो देखो, before going into the understanding part, very quickly see, again I have taken the same noble gas का set जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। आपके पास क्या है? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उनके सामने उनका एटॉमिक नंबर्स लिखा हुआ है। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 86। स्टूडेंट्स इसको नोट करो, बिकॉज इसको समझना है आपको और समझ के लिखना है। तो अगर आप इसको नोट भी करेंगे तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट किड्स? और सब बच्चे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। 10th में टेंशन नहीं लेना है। 10th में पढ़ाई बड़ी आसान है, बस बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट यू आर अपियरिंग फॉर सच एन बिग एग्जामिनेशन, थोड़ा सा प्रेशर लगता है। बट 10th में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इट गोज थ्रू स्मूथली, तब आराम से हो जाएगा। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं
तो आपका आराम से 10th निकल जाएगा। प्रेशर कहाँ लेना है? प्रेशर लेना है 11th 12th में, इफ यू आर टेकिंग अप साइंस। ओके, तो वहां पर वो प्रेशर वहां के लिए बचा के रखो। नाउ कम बैक टू आवर सेट ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन एंड रेडॉन। यहां पर बेटा अब इनके सामने मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सिखाया गया था इन केमिकल बॉन्डिंग, अगेन इन 9th grade. Now you know that electronic configuration को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, that apart from helium, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सबका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है that the outermost shell of all these elements are containing same number of electrons. Okay, मतलब इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration is the same. Can I say that? What is same? I will say valence shell. Valence shell मतलब outermost shell. Valence shell electronic configuration is the same. Electronic configuration is same. और इसी वजह से क्या है, ये एक तरह से बिहेव करते हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये ऑलमोस्ट सेम होती है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट हियर? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? पहले पीरियोडिसिटी क्या है? एक जैसा बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। repetition of, what is the reason? Repetition of same valence shell electronic configuration. Repetition of same valence shell electronic configuration after a definite gap of atomic numbers such as 2, 8, 8, 18, 18, 30. एग्जैक्ट आंसर भी दे रही हूं बिकॉज आईसीएससी में क्या होता है, इन आईसीएससी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पे बहुत एम्फेसिस होता है। आईसीएससी में एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पे बहुत एम्फेसिस होता है। अगर तुम एग्जैक्ट वर्ड्स देते हो तो मार्क्स तो गारंटीड है, इसीलिए मैंने आंसर वाइज ही आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। रेपिटेशन ऑफ सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर भी अगर तुम्हें लगे कि हो सकता है आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, यू कैन गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, द स्टैंडर्ड वन इज इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, सामने वाला देखो मैंने जो नोबल गैसेस का दिया है ये भी आप डाल सकते हो अपने आंसर में। Got it? So with this long form of modern periodic law क्या है, periodicity क्या है, क्यों होती है periodicity, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि, और we will try to arrange elements in the periodic table. Long form of periodic table में electrons electronic configuration को देख के arrangement करेंगे elements। Okay, so what is the first thing that we need to keep in mind? कि पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे है, प्लस इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेजर रोल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का मेजर रोल है। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं वो क्या है अपने पीरियड, और वो कितने हैं? 7 in number. Horizontal rows are our periods and they are how much? 7 in number. Vertical rows, vertical columns are our groups and वो कितने हैं? 18। ये सारी चीज आपको 9th में पढ़ाई गई है, बट 9th में बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है, बट 10th में इसको क्लियर किए बिना हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे जंप करें, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? सो व्हाट हैव आई गिवन यू, यहाँ पर एक टेबल बना दिया है मैंने। यहाँ पर इस टेबल में आई हैव रिटन दी एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर एलिमेंट लिया है सीक्वेंशियली 1 to 12 यहाँ पर दिया है मैंने। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जस्ट उसके सामने आई हैव गिवन यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो हियर आई हैव रिटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये पूरा कॉलम है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर तुम्हारा है एलिमेंट। अब चलो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में लगाते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, पहले एटॉमिक नंबर 1, फिर एटॉमिक नंबर 2,
ना फर्स्ट, अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो कि शेल की कैपेसिटी तुम ध्यान में रखो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 8 18 18 ऐसे करके बढ़ते हो। उसी हिसाब से सेम ऑर्डर में तुम्हारे पीरियड में भी एलिमेंट्स होंगे। अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला पीरियड जो कि पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही एलिमेंट्स। गॉट इट? चलो देखें। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। यही टेबल आपकी सेलिना बुक में भी दी हुई है, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। मिनिमम एटॉमिक नंबर 20 तक आपको रटना है, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद, यहाँ देखो, यहाँ आई हैव रिटन दीज आर द पीरियड्स गिवन, द हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड 1, पीरियड 2, और ये तुम्हारे ऊपर से नीचे आने वाले ग्रुप्स हैं, वर्टिकल ग्रुप्स। नाउ इन दीज वर्टिकल ग्रुप्स व्हाट हैज हैपेंड, हमने 2 और 3 के बीच में जितने ग्रुप हैं ट्रांजिशन मेटल वाला, वो आपके बुक में अभी नहीं दिखाया है, बिकॉज फर्स्ट वी सिंपली वांट टू सी कि टेबल में अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन लो पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1, एटॉमिक नंबर 1, तो ये फर्स्ट पीरियड में है और ग्रुप नंबर 1 में है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हियर। ओके, नाउ हीलियम भी फर्स्ट पीरियड में जाएगा क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाता है। ओके, हीलियम, इफ दिस इज द न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो एलिमेंट बदल जाता है, वो हीलियम बन जाता है, सो सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, ये दोनों एलिमेंट्स सिर्फ फर्स्ट पीरियड में है। फर्स्ट पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों, फर्स्ट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड। देन लुक एट द नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है तुम्हारा लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हाउ मेनी शेल्स हैव बीन ऑक्यूपाइड, 2, दूसरा शेल भी यूज में आ गया है, तो इस लिथियम को हम सेकेंड पीरियड में डालें। सेकेंड पीरियड में डालने के बाद फर्स्ट क्या हो गया, हमने उसको सेकेंड पीरियड में डाला, सेकेंड पीरियड में इसका वेयर हैव वी प्लेस्ड इट, वी हैव प्लेस्ड इट बिलो हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिथियम को जस्ट हाइड्रोजन के नीचे डाल दिया। नेक्स्ट बेरिलियम, भी 2 शेल्स है इसमें, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, तो बेरिलियम को डाला उसके बगल में। फिर बोरॉन 2 3, अभी तक हमारा सेकेंड शेल ही फिल हो रहा है, तो हम सेकेंड पीरियड में ही इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, अरेंज करते चले। देन नाइट्रोजन 2 5, अगेन सेकेंड शेल में ही अभी तक हम। ऑक्सीजन 2 6, एटॉमिक नंबर 8 2 6, belongs to the second period. Okay, then fluorine, then neon, neon 2 8. Now neon के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 जैसे ही होता है सेकेंड शेल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड शेल कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों 2 8 1, यहाँ पर 3 शेल्स यूज हुए हैं, तो सोडियम को रखा गया है थर्ड पीरियड में, समझ में आ रहा है, सोडियम में 3 शेल्स यूज हो रहे हैं, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गया, तो दिस इज बिलोंगिंग टू द पीरियड नंबर 3। तो ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है और इन द पीरियोडिक टेबल इस तरह हम एलिमेंट्स को लगाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? क्या ध्यान रखते हैं कि शेल, एक शेल वालों को हम एक रो में रखें, एक पीरियड में रखें, ओके, और ये भी ध्यान रखते हैं कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वालों को हम एक के नीचे एक रखें, जैसे हाइड्रोजन के नीचे रखा लिथियम, लिथियम के नीचे रखा सोडियम, और सोडियम के नीचे आपने रखा, सोडियम के नीचे आपने किसे रख दिया, सोडियम के नीचे पोटेशियम रखा,
क्योंकि पोटेशियम के एंड में भी क्या देख रहे हो 2881 है। तो व्हाट इज सेम, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो ग्रुप में क्या बार सेम हो रहा है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है। ओके, ग्रुप के मेंबर्स को हम एक फैमिली का भी बोलते हैं। ग्रुप मेंबर्स जो एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में रख रहे हैं उनको हम एक ही फैमिली का बोलते हैं, एक ही खानदान का बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर बिहेविंग सिमिलरली। एक ही फैमिली के लोग एक ही तरह बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर रहता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिकॉज ये सारे एक जैसे बिहेव करते हैं हम इनको बोलते हैं ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। राइट किड्स? सो दिस आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल by just looking at the electronic configuration और एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर को कंसिडर किया। ठीक है, अब ये जो टेबल आपके सामने है, दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो मिनिमम ये आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको आना चाहिए करने के लिए। गॉट इट? किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता करने के लिए बच्चों सबसे पहले लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो सोडियम मैंने लिया है, आई विल राइट हियर 281। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने 3 शेल में अरेंज किया। सो विच हाउ मेनी शेल्स डिड आई यूज? 1 2 3। तो मैं बोलूंगी कि सोडियम का पीरियड कौन सा है? Sodium belongs to the third period of the periodic table. Okay. Similarly, if I say now, अब क्या हो गया, ग्रुप नंबर तुम्हें पता करना। ग्रुप नंबर के लिए look at the outermost valence shell. ग्रुप नंबर के लिए look at the outermost valence shell. So outermost valence shell के लिए आप क्या करेंगे? क्या दिख रहा है वैलेंस शेल में? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 1. So sodium belongs to group 1 and period 3rd. Right? यहां पर in the group number I've given this hashtag. हैशटैग दिया है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक दूसरी बात भी बच्चों को ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? सपोज तुम्हारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना आ गया? वो आ गया 3 और ग्रेटर देन 3। क्या 3 और ग्रेटर देन 3 आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? आ सकते हैं। बोरॉन, कार्बन, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे एटॉमिक नंबर्स में तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। सो 3 और ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3। अब क्या करना है बच्चों? अगर ऐसा केस आए तो आप क्या कर दो? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Okay, what will you do? 10 plus the number of valence electrons given. Let us take an example. Let me take a boron atom. ठीक है, बोरॉन एटम ले लेती हूँ। बोरॉन ले लिया। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। 2 and 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 and 3। How many shells have you used? 2 शेल यूज हुए हैं। तो इसका पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गया 2, सेकेंड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। ग्रुप नंबर क्या? ग्रुप नंबर के लिए क्या है? इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर किड? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो क्या करेंगे? क्या बताया मैंने? अगर 3 है या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 10 प्लस 3 करो, इट विल बी 13। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया? 13। ओके, 13 या जो टर्मिनोलॉजी आप जानते हो 3A। इज इट करेक्ट? सही है, हो जाएगा। ओके, तो चलो इसको वेरीफाई कर लो इस पीरियोडिक टेबल से। सोडियम, सोडियम का वेयर इज सोडियम प्रेजेंट? यहां पर। इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। ध्यान दो, इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड
थर्ड पीरियड, और ग्रुप कौन सा है, 1A या फर्स्ट ग्रुप। सिमिलरली बोरॉन देख लो, बोरॉन है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर 5, इट इज प्रेजेंट इन द 13th ग्रुप एंड इन द सेकेंड पीरियड। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है, ये तुमको करने आना चाहिए, फाइंडिंग द पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एटॉमिक नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट, सडन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुमको याद रखना। ओके, वेरी क्विकली, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने है एंड आई वांट यू टू वेरी क्विकली आंसर दीज क्वेश्चंस। एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो, क्या क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से लुक ऑन द स्क्रीन। देखो, पहला क्या है, ग्रुप 1A इज कॉल्ड 1A। ग्रुप 1A को हम क्या बोलते हैं, 9th में पढ़ा है बेटा। यस, ग्रुप 1A आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स, बोलते हैं ग्रुप 1A या ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप ए, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल देम एज एल्कली मेटल्स? इट इज बिकॉज जब ये जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक क्या है, याद कैसे रहेगा ये ग्रुप? निमोनिक के लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोग को दे दूंगी, राइट। बट निमोनिक क्या है, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, और ग्रुप 1। चलो, ग्रुप 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रुप 2A इज कॉल्ड, ग्रुप 2A कौन सा है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2A की बात हो रही है अभी बच्चों, ग्रुप 2A, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। निमोनिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सब बहुत फेमस निमोनिक है, ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे को ये आता है, और इसीलिए मैं भी यहाँ यूज कर ले रही हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, जस्ट एक सिस्टम है याद करने का, तुम अपना भी बना सकते हो, राइट। तो ये जो ग्रुप 2 है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इनका क्या है? द कॉमन नेम फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज, यस किड्स, योर टर्न, खुद से सोच के बोलो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको। क्वेश्चन है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि these elements are mostly found on the earth crust as their oxides, और ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप 5A। ग्रुप 5A मतलब ग्रुप 15, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने है बच्चों। ग्रुप 5A 15, तो यहां पर क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन दिख रहा है आपको ग्रुप 5A में, 15th ग्रुप में। इस फैमिली को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, व्हाट इज दिस फैमिली? ध्यान से देखो, अभी पीरियोडिक टेबल के फीचर्स को हमें ध्यान देना है। तो ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बोलो मेरे साथ, क्योंकि बोलना जरूरी है, ग्रुप याद होना है। यही चैप्टर तुम 11th स्टैंडर्ड में रिपीट करोगे और यही तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। बहुत सारे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और ये मिनिमम नॉलेज है जो तुम गेन कर रहे हो। सो डोंट थिंक कि अगर हम 10th में पढ़ लिया तो फिर आगे यूज नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, जोश से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। सो ग्रुप 15 को कॉमन नेम है इसका निकोजेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? निकोजेंस। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे अंग्रेजी होती है टेढ़ी मेढ़ी, किसी को भी साइलेंट कर देते हैं, किसी को भी जगा देते हैं। तो इट इज निकोजेंस, NICTOGENS, निकोजेंस बोला जाता है। निकोजेंस वर्ड बेसिकली एक ग्रीक लेटर से आया हुआ है, पिजन वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है चोकिंग इफेक्ट, चोकिंग इफेक्ट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं निकोजेंस। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप 15A का क्या है, निकोजेंस। चोकिंग इफेक्ट इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, ये कोई भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब यू विल सफोकेट इन देयर प्रेजेंस।
आई वोंट से लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, गलत स्टेटमेंट है ये। निकोजेंस चोकिंग इफेक्ट से ये नाम आया है। देन यू कम टू 6A, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया। सो ग्रुप 15A को हम बोलते हैं निकोजेंस। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। तो ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली का क्या नाम है, सोच के बताओ। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ लाइफ सपोर्टिंग ग्रुप। ये खानदान, ये ऑक्सीजन की फैमिली, जिसमें सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इन्हें हमने नाम दिया हुआ है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, ओके। चैल्कोजेन वर्ड का मतलब क्या होता है, चैल्कोजेन वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग, मोस्ट ऑफ द ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है चैल्कोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 7, ये सारी चीजें नोट करते चलोगे क्योंकि ये बेसिक जनरल नॉलेज है पीरियोडिक टेबल की, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे को आता है, एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे को आता है, गॉट इट। इसीलिए इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, 9th में ही बच्चे से एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि उसे ये सब कुछ आता है, गॉट द पॉइंट किड्स। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ग्रुप 7A 17th ग्रुप, मैंने दोनों तरह से टर्मिनोलॉजी दी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17 की, ग्रुप 17 और 7A। Now what is this group called, ये तो तुम लोगों को अच्छे से याद होगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज हैलोजेंस, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके। इसमें आयोडीन क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का कलर क्या है, ग्रीनिश येलो गैस है, ओके। तो चलो, हैलोजेंस को हैलोजन क्यों बोलते हैं, हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं बच्चों, हैलोजन को हैलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स, ग्रुप 17 के मेंबर्स मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है हैलोजेंस। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे 11th 12th में आपको वही पढ़ना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, ग्रुप 18। ग्रुप 18 ये वाला अपना लास्ट नोबल गैस का ग्रुप, इनर्ट गैस का ग्रुप, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडन, रेडन, ठीक है। ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ओके। सो दिस वाज अबाउट द टर्मिनोलॉजी पार्ट। देन एक और चीज मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि ग्रुप 1, ग्रुप 1 2 एंड ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इनको छोड़ के जो ग्रुप्स हैं, कौन से अब ग्रुप बच गए आपके लिए, कौन से ग्रुप हैं जो अभी बच गए, वो ये येलो वाला जो सेक्शन है, येलो कलर जो सेक्शन दिख रहा है, द ट्रांजिशन मेटल सीरीज, ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ये बीच का जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, ये वाला है तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल्स। तो इफ समबडी आस्क्स यू ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन, व्हाट विल बी योर आंसर, इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ध्यान रखो, ट्रांजिशन मेटल्स मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लाइट मेटल्स, बट ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो मेटल्स हैं, ये वो मेटल्स हैं जिनसे हम नॉर्मल लाइफ के अपनी सारी चीजें बनवाते हैं, बनाते हैं। जैसे कि हो गया तुम्हारा कॉपर, निकल, आयरन, ये सारे एलिमेंट मेटल्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स विच आर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग आवर अलॉयज एंड आवर इक्विपमेंट्स, ये क्या कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांजिशन में। तो ये मत समझना कि ट्रांजिशन यार ये पढ़ना ही नहीं है, ट्रांजिशन आर अ वेस्ट, नो, ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट
10th के लिए ट्रांजिशन को उतना हम ध्यान नहीं देते हैं. स्टिल ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डालती हूँ यहाँ पर बच्चों. ये बताओ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किस पीरियड में स्टार्ट हुआ है? पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते रहो. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इफ यू लुक वेरी केयरफुली किड्स, वेरी 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 केयरफुली देखो, ग्रुप नंबर 4 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी पीरियड नंबर 4 को देखो. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैंडियम से शुरू होता है, वो कहां प्रेजेंट है? क्या वो पीरियड 1 में है, पीरियड 2 में है, पीरियड 3 में है? नहीं, पहला ट्रांजिशन सीरीज पीरियड 4 से शुरू होता है. 3 ट्रांजिशन सीरीज बेसिकली तुम्हें जानना है. देखो जो 7th पीरियड है उसकी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ. 7th पीरियड में कोई बात नहीं कर रही हूँ. रीजन है 7th पीरियड इनकम्प्लीट है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव है, उनके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं हुई है. इसके लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 7th पीरियड. हम अपना सारा स्टडी लिमिट किए हुए हैं 6th पीरियड का. गॉट इट? राइट. सो पीरियड 4 कैंडियम से जिंक तक पहला ट्रांजिशन सीरीज. ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच ग्रुप टू विच ग्रुप? ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. ओके, कितने ट्रांजिशन सीरीज है? 3. पहला 4th पीरियड में, दूसरा 5th पीरियड में और तीसरा 6th पीरियड में. याद रहेगी बात? मिनिमम इतना बच्चे याद रखना है. ओके, मिनिमम इतना याद रखना है. देन कम टू द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ट्रांजिशन के अंदर घुसा हुआ है वो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर घुसा हुआ है वो. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेफर टू व्हाट? दे रेफर टू नथिंग बट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. किसको रेफर कर रहे हैं? पेन का कलर तो बदल लूं. हाँ बेटा, दे आर रेफरिंग टू व्हाट? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. जो पीरियोडिक टेबल के नीचे में बेल्ट में लिखे हुए हैं, एक्चुअली वो नीचे इसलिए लिखे हैं अगर उनको उनकी एक्चुअल जगह पे रख दिया जाए ना तो पीरियोडिक टेबल और चौड़ा हो जाएगा. इट विल बी वेरी 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 लेंदी, कम्बसम, टेबल बनाना मुश्किल, दीवार पे लटकाना मुश्किल, सारी चीजें. तो हमने क्या किया, सेफली उसको वहां से निकाल के नीचे लिख दिया. ओके, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लैंथेनॉइड कौन से पीरियड में है? क्वेश्चन, लैंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में है? ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल. लैंथेनॉइड्स 6th पीरियड में है. लैंथेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड. लैंथेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द 6th पीरियड. और एक्टिनॉइड्स किस पीरियड में है? 7th पीरियड. कोई पूछे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप नंबर क्या है? कोई अगर पूछे कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का ग्रुप नंबर क्या है, तो ये देखो बेटा, यहां पर 2 डॉट बने हुए हैं. कौन सा ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को? ग्रुप नंबर 3. तो योर आंसर इज बोथ बिलोंग टू ग्रुप 3. लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज जो है, जो 14 एलिमेंट की सीरीज है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये 3rd पीरियड, 3rd ग्रुप में है और 6th और 7th पीरियड में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, इज लैंथेनॉइड एंड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जो ये फर्स्ट मेंबर हमने इधर लिख के दिया आपको, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, आर दीज lanthanides and actinides part of the inner transition series? No. आंसर क्या है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स नहीं है. ये ट्रांजिशन मेटल्स है, लेकिन चूंकि इनके बाद ये पूरा सीरीज स्टार्ट होता है, which is actually from, ध्यान दो, सीरियम, मैं सर्कल लगा रही हूं बच्चों, सीरियम से ल्यूटीटियम, और एक्टिनॉइड्स में थोरियम, TH, थोरियम से लॉरेंसियम. आपसे पूछेगा नहीं बट आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं. यह है इनर ट्रांजिशन सीरीज, एक्चुअल सीरीज. लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बिकॉज दे आर द स्टार्टिंग मेंबर्स और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, इसलिए पूरी सीरीज का नाम रख दिया गया है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स. गॉट इट? तो ये माइनर पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखने हैं अबाउट द पीरियोडिक टेबल, विच आर एक्सपेक्टेड कि हर बच्चे को आता है. ओके, आईसीएससी का क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ये हमेशा याद रखना है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर. गॉट इट बच्चों? होप यू हैव नोटेड डाउन एवरी पॉइंट. अगर कुछ छूट गया है तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके आप देख लो.
अगर आता है तो 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन देख लो, पढ़ना जरूरी है। ओके, चले एक बार फिर से मुस्कुरा दीजिए। वेरी गुड, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट 2014 बोर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूं। व्हाट इट, लेट अस सी वेदर विद द प्रेजेंट नॉलेज जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन। So, an element A belonging to period 3 and group 2 will have. क्वेश्चन ध्यान से देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। एन एलिमेंट ए कोई एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ओके, अभी हमने ग्रुप्स और पीरियड्स निकालना सीखा है। ओके, सो इफ द पीरियड नंबर इज 3, इसका मतलब क्या होता है? पीरियड किस चीज को डेजिग्नेट करता है बच्चों? पीरियड डेजिग्नेट करता है ग्रुप, पीरियड डेजिग्नेट करता है शेल नंबर को। अगर पीरियड थर्ड है तो शेल नंबर भी कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, ग्रुप किसको डेजिग्नेट करता है? ग्रुप डेजिग्नेट करता है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओके, सो ग्रुप designates the number of valence electrons. So, valence electrons हमारे पास कितने दिए हुए हैं? ग्रुप 2 दिया हुआ है, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? 2 होगा। सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस। ए 3 shells and 2 valence electrons, तो पहले वाले में ही आपका आंसर मिल गया। ओके, आंसर इज ए। Got it? How will you solve this question? So with the simple knowledge जो आज हमने सीखा है, हमें 1 मार्क हमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z इज 16। अब यहां पर ये दिमाग में तुरंत मत ले आना एटॉमिक नंबर 16 मतलब सल्फर, नो। अगर Z दिया है तो Z ही से चलेंगे, हम उसे चेंज करके S नहीं करेंगे। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट Z इज 16। आंसर द फॉलोइंग, state the period and group to which Z belongs. ओके, आपको निकालना है उसका पीरियड, आपको निकालना है उसका ग्रुप। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एटॉमिक Z है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर है 16, break it into its electronic configuration. You need to write this, kids. So it will be 2, 8, 6. How many shells? 3 shells. तो पीरियड कितना हो गया? पीरियड हो गया 3. So period is third. नेक्स्ट, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के लिए किसे देखते हैं? आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं। क्या बताया मैंने? आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐड 10 टू द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बेटा? ग्रुप नंबर विल बी 10 + 6 विच इज 16। तो आपका आंसर क्या है? पीरियड नंबर इज थर्ड एंड ग्रुप नंबर इज 16। अब यहां पर शॉर्टकट नहीं मार देना, जो सिंपल 2-3 लाइन मैंने लिखी है कम से कम वो लिखना है। राइट, व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट 2। इज Z अ मेटल और अ नॉन मेटल? मेटल और नॉन मेटल की बात हम कैसे समझ जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3 और लेस देन 3 वो मेटल है, और अगर 3 से ज्यादा है तो मोस्टली वो नॉन मेटल होते हैं। तो दिस विल बी अ नॉन मेटल, Z विल बी अ नॉन मेटल। अग्रीड किड्स? राइट, तो कितने नंबर आ गए हमें? 3 नंबर आ गए। व्हाट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन और सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी देख के खुशी हो जाती है कभी कभी बच्चों की कि अच्छा ये भी आता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही आए तो और अच्छी बात है ना? तो क्वेश्चन देखो, मैच द ऑप्शन ए एंड बी विथ स्टेटमेंट्स 1 and 2। तो यहाँ 2 कॉलम है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। पहले कॉलम में दिया हुआ है मेटल और आयरन, 2 ऑप्शन है मेटल और आयरन, और दूसरे में क्या है? अ मेटल दैट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ आयंस। चलो बच्चों फटाफट इसका आंसर करो। और बी ऑप्शन दिया है एन एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2883। अभी मैंने क्या बताया कि मेटल्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी या वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तक ही होते हैं, 3 या 3 से कम। तो अगर मैं इन दोनों को मैच करूं तो क्या वो करेक्ट होगा? बोलो बालको, क्या वो करेक्ट होगा? बोलो यस मैम। हाँ यस मैम होगा। ठीक है, चलो। सो 2014 के ये कुछ क्वेश्चन थे जो तुम अपने मिनिमम नॉलेज से, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये बोर्ड में आए हुए हैं, ये आप कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट टफ। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, केमिस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज इट्स वेरी 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 इजी। राइट किड्स? सो आई विल सम अप टुडे, हमने क्या क्या सीख लिया है, और जिससे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। वी हैव लर्न्ड अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, करेक्ट? यस। हैव वी लर्न कि हमारे पास 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं? यस, लुक एट द स्क्रीन। डू वी नो दैट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements of the same group, look at this box, elements of the same group have same number of valence electrons? क्या हम ये जानते हैं? हाँ हम जानते हैं मैम, हमने नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखा है, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बॉक्स में चले। एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड, उनका क्या फीचर है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल नंबर ऑफ शेल्स। क्या है? इनका शेल जो होता है वो सेम होता है, जितने भी शेल्स होते हैं अगर वो एक पीरियड में है तो उनके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो वी अंडरस्टूड। ठीक है, एंड डू वी नो दिस फॉर्मूला 2n²? किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एंटायर कैपेसिटी है वो हम कैसे जानते हैं? 2n² से। सो दिस ऑल्सो वी नो। पीरियोडिक ट्रेंड, अब ये बच गया है क्वेश्चन मार्क, ये आई विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिनिमम इतने नॉलेज जो कि हमारे बैकग्राउंड में रहना है, और इससे भी हम कुछ सवाल कर पा रहे हैं, जानना जरूरी है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है? ओके, टिल देन मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेना, एंड कीप स्माइलिंग किड्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।